Hello, my dear students. Students, in today's video, we will start our grammatical topic, tenses. Students, this is a very important topic of your grammar. So, we are continuing with tenses. The word tense comes from the Latin word tempus. Students, ये जो word है tense, ये कहाँ से आया है? ये एक Latin language tempus से आया है, which means time. ठीक है. So basically tense is related to time. You have to keep in mind that in tense you are telling about time of an action. The tense of a verb shows the time of an action. ठीक है. किसी भी वर्ब का जो टेंस है वो शो करता है कि कोई भी जो एक्शन है वो किस टाइम पर हुआ है. So the tense of a verb shows the time of an action or event. ठीक है. कोई भी काम जो है वो किस समय पर हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा, तो वो कोई भी एक्शन के टाइम को शो करता है. दैट्स वाई टेंस इज रिलेटेड टू टाइम. It also shows the state of an action. So students, you have to keep in mind that tense not only shows us the time of an action, but it also tells us about the state of an action. State of an action means whether the action is in complete condition or the action is in incomplete situation. So here are two main things which you have to keep in mind, that tense not only shows the time of an action but it also shows the state of an action. State of an action का मतलब है कि एक्शन जो है, किसी कोई भी काम जो है वो किस स्टेट में है, वो कंप्लीट हो चुका है या इनकम्प्लीट है या कंप्लीट होना है. So students, there are three tenses in grammar. You know very well: present, past and future. So and here are the further types of present tense. Present tense is divided into 4 categories. First is present indefinite. You can say simple present. Second is present continuous. It is also called present progressive tense. Third is present perfect, and the fourth one is present perfect continuous. In the same way, past is also further divided into 4 types: simple past, or you can say past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Here future also, simple future, or you can say future indefinite, future continuous or future progressive, same thing, future perfect and future perfect continuous. So students, 3 main tenses are here: present tense, past tense and future tense. और आप सभी को जो है इनकी जो फर्दर बाइफर्केशन होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. नाउ वी आर मूविंग फर्दर टुवर्ड्स प्रेजेंट टेंस. Students, now we will do these tenses in detail. We will come to know about the structure of these tenses. Of each tense we will do the structure, and we will also do the uses of these tenses. So first we are taking present indefinite tense or simple present tense. The indefinite form simply states an action. It doesn't say whether the action is complete or not. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो सिंपली एक एक्शन को शो करता है, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि जो एक्शन है वो कंप्लीट है या नहीं. सो वी आर डूइंग स्ट्रक्चर. In structure you will come to know about that how you make a sentence of present indefinite tense. You have to follow a proper structure while making a sentence. So first we are doing in affirmative sentences. Affirmative sentences, or you can say simple sentence में आप कैसे structure frame करते हैं present indefinite में. Here S stands for subject. Subject plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और es एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा affirmative sentences में स्ट्रक्चर होता है.
अगर आपको सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर बनाना है, सो यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न ओनली. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ईएस एंड प्लस ऑब्जेक्ट. Here the example is I write a letter. He writes a letter. How you will come to know that where you have to use first form and where you have to use S and ES with first form? In your previous classes also it is told that you have to use S or ES with he, she, it or singular, and you have to use verb की first form with I, you, they, we and plural nouns. वहाँ पे आप verb की first form use करते हैं. Now negative sentence, subject plus now here helping verb use होती है do and does. जब आपको negative sentence बनाना होता है तो आपको do और does की need होती है sentence frame करने के लिए. तो यहाँ पे subject plus do not, does not. Why not? Because you are framing a negative sentence, that's why you will use here not. Plus verb की first form plus object. Here is the example, he doesn't play football. यहाँ पे he आया है इसलिए आपने does लगाया. The boys do not sing a song. The boys plural है, that's why you have used here do. Interrogative sentence में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है डू यू प्ले फुटबॉल, डज शी सिंग अ सॉन्ग. यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इफ़ यू आर यूजिंग डज हेयर देन यू विल नॉट यूज एस एंड ई एस हेयर. ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में. आपका यहाँ पे डज आ गया है ऑलरेडी, एस और ई एस ऐड हो गया है, so there is no need to use S and ES with the verb की first form. Yes, now we are moving further towards the use of simple present tense. कि simple present tense का use क्या होता है, where we use simple present tense. You already know that we use the present tense to talk about actions that take place in the present or at the time of speaking. ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब जब हम कुछ बोल रहे हैं और वो एक्शन उस वक्त हो रहा है. ठीक है, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस. और एक ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट में जिसने जो हुआ है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. सो फर्स्ट यूज है द प्रेजेंट मोमेंट. ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में जब हम बताते हैं, दिव्या इज एट स्कूल, साहिबा हैज अ बैड कोल्ड. फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ्स, जब भी हम जनरल ट्रूथ की बात करते हैं तब हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. रोजर फेडरर प्लेज टेनिस. एन एवरेज हाउस फ्लाई लीव्स फॉर अबाउट 3 weeks. तो यहाँ पे कि ये जनरल ट्रूथ है, फैक्ट है. तो जब भी आप कोई जनरल ट्रूथ की या फिर किसी फैक्ट की बात करते हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं. समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली, कोई भी ऐसी चीज़ जो रेगुलरली होती है, हैबिट का पार्ट बन चुकी है. ठीक है, तब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. सुमेधा प्रैक्टिसेस योगा एवरी मॉर्निंग. ठीक है, कि सुमेधा जो है वो योगा प्रैक्टिस करती है हर सुबह, तो यानी कि वो उसके डेली रूटीन का एक पार्ट बन गया है. दैट हैपन्स रेगुलरली, तो दैट्स व्हाई यू हैव यूज्ड हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? Because here S and ES is used with verb की first form. तो जहाँ पर भी आपको verb की first form plus S and ES मिले तो यानी कि वो simple present tense है. Grandpa waters the plants in the evening. Grandpa जो है वो evening में water को plants को water देते हैं, यानी कि ये उनके regularity का part है, regular schedule का part है. सो जब भी आप किसी हैबिट के बारे में बता रहे हैं, किसी रेगुलर प्रैक्टिस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, डेली रूटीन के बारे में बता रहे हैं, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. थिंग्स दैट आर प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर. ठीक है, वो चीज़ें जो कि नियर फ्यूचर के लिए प्लान्ड हैं. ठीक है, बिल्कुल नज़दीक के फ्यूचर के लिए. अगर डिस्टेंस फ्यूचर की बात की जाए तब तो हमारा फ्यूचर टेंस यूज होता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नियर फ्यूचर देन वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस.
लाइक द प्लेयर्स लीव फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, कि प्लेयर्स जो हैं वो इंग्लैंड के लिए निकलेंगे नेक्स्ट वीक। नियर फ्यूचर की बात हो रही है। अगर हम नेक्स्ट मंथ की बात करें तो वो हमारा डिस्टेंस फ्यूचर हो जाएगा, तो हम वहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। सफ़ाज फादर रिटायर्स इन अ मंथ, सफ़ा के फादर जो हैं वो एक मंथ में रिटायर हो जाएंगे। सफ़ाज फादर विल रिटायर इन अ मंथ, और विल रिटायर इन अ ईयर, और विल रिटायर इन 2 और 3 ईयर्स। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे डिस्टेंस फ्यूचर की बात हो जाती है। दैट्स वाई वी यूज देयर फ्यूचर टेंस। बट इफ यू विल यूज हेयर विल शैल ना, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट। What is happening right before the speaker's eyes? जो भी स्पीकर की आइज के सामने हो रहा है, ठीक है, उस वक्त, जिस वक्त वो उसे बोल रहा है और उसी वक्त वो हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। सिल्वा टैकल्स क्रूज, गेट्स द बॉल एंड पासेस इट टू मार्सेलो। रहना हिट्स द बॉल ओवर द बाउंड्री फॉर अ 6। ठीक है, यानी कि उसने बाउंड्री पर जो है 6 मारा, और जिस वक्त मैं बोल रही हूँ उस वक्त वो इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पर हम ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। आफ्टर दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दिस टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज इन प्रोग्रेस। ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है, हो रहा है। गोइंग ऑन, इट इज गोइंग ऑन। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो वही सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी इसमें इज एम आर आती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। यू हैव टू लर्न दीज स्ट्रक्चर्स, ओनली देन यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस। सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई एम राइटिंग अ लेटर, या कि मैं लेटर लिख रहा हूँ, यानी कि वो काम प्रोग्रेस में है, कॉन्टिन्यूएशन में है। दैट्स वाई दिस टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब कोई भी एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूटी में है, प्रोग्रेस में है। दैट्स वाई दिस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंस। सेकेंड इज नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट में किया था, हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले आते हैं। एम आई राइटिंग अ लेटर। We use the present continuous tense to talk about an action that is happening at the present moment. ठीक है, एक ऐसे टाइम एक्शन के बारे में बताने के लिए जो कि प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है, हैपनिंग, कंटिन्यूएशन में है। टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी एंड द आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, तो हम फर्स्ट जैसे एग्जांपल है, रश्मि इज मेकिंग टी, महावीर इज pouring मिल्क फॉर द कैट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब यूज़ के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम लेटर। ठीक है, एक ऐसी चीज़ को बताने के लिए जो कि अभी हो रही है, प्रोग्रेस में है, हो रही है, और वो कंटिन्यू रहेगी फॉर सम टाइम लेटर, कुछ टाइम तक जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अभी हो रही है और कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू रहने वाली है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आई एम लर्निंग चाइनीज़, कि मैं चाइनीज़ सीख रही हूँ। ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस में है, वो काम प्रोग्रेसिव मोड में है और कुछ टाइम तक कंटिन्यू भी रहने वाला है। माई ब्रदर इज स्टडिंग लॉ, कि मेरा जो ब्रदर है वो लॉ की स्टडी कर रहा है। ठीक है, अभी वो काम प्रोग्रेस में चल रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आज ही ख़त्म कर देगा या कल ही ख़त्म कर देगा, लेकिन वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा वो सम टाइम लेटर। समथिंग अनोइंग दैट हैपन्स रिपीटेडली, यू आर ऑलवेज रनिंग अबाउट बेयरफुट। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बताने के लिए जो कि रेपिटेडली होता ही है। प्रत्युष इज कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग द क्लास, कि प्रत्युष जो है वो कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब करता है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो कुछ भी ऐसा बताने के लिए
समथिंग अनोइंग दैट हैपन्स, कुछ भी ऐसा जो कि अनोय करता है हमें जो है बहुत जो है हम अनॉयड हो जाते हैं, जिस चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं, और वो हैपन्स रिपीटेडली, जो रिपीटेडली होता ही रहता है, तो वहाँ ऐसी चीज़ों को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. So students, we will discuss further tenses in our next video. If you have any problem in these tenses, you can discuss in your online session.